So now we will discuss some problems based on AP, GP, HP. Now see the first question. Question is, if A, B, C, D, E are in AP, correct? Then the value of A minus 4B plus 6C minus 4D plus E is, correct? See, this is very basic question. A, B, C, D are in AP, then the value of this expression, correct? So what we will do, A is A first term, B is, because this is in AP, so B we can write second term A plus D. Similarly C we can write A plus 2D, D we will have A plus 3D, and E we will have A plus 4D, correct? We can write. Now we'll substitute into this expression, A minus A plus D 4B, 6 is A plus 2D minus 4D, D is A plus 3D, and plus E is nothing but A plus 4D. Once you simplify this, you will get all the terms get cancelled. 0 you will get. So all of you understood? A, B, C, D are in AP, then the value of this. This sum I have done this way. Couple of students they ask, sir, can we put the value of 1, 2, 3, 4 this way? That way also you can do. You can take any value, let's say A1, B2, C3, D4, E5. Fine? This also you can put and you will find the value came will be 0. This should be in AP then. ये AP में होना चाहिए, तभी आप ये वैल्यू डाल के इस तरह के सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस सम इट केम वंस इन एनडीए. दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन डियर. ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन एनडीए पूछती है, तो इस पे आपको कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है? आइए विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. See, sequence series, log and quadratic equation, these three are backbone of algebra in NDA. NDA के अंदर डियर ये तीन सेगमेंट कौन कौन सा, quadratic equation, sequence series and log, ये तीनों के मिक्स्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारे होते हैं. तो ये तीनों एरिया पे आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, ठीक है? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फिफ्थ टर्म of an AP of n terms whose sum is n square minus 2n is. Options are this. ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? We want a fifth term of an AP whose n term का सम ये दिया हुआ है, मीन्स Sn is given n square minus 2n, then we want T5, correct? This is the question. Sum of n terms of an AP is given n square minus 2n, and then we have to find T5. See dear, to get a term or sum of n terms, we require first term A and common difference D. These two are requirement. So once you get A and D, job is done. How it is possible? There are ways to solve such sum. What do? You can put N1, S1. This is T1 and this is A also you can say. So N equals to 1, what will happen? This is going to be minus 1. Now S2, N equals to 2 I am putting, but S2 comprises T1 plus T2, sum of two terms, which is S2 is T1 plus T2. So 2, 4 minus 4, this is 0. Fine. Now T1 we have minus 1, so T2 becomes what? 1. Fine. Understood? So this A minus 1 and this T2 came 1. So what is the common difference? T2 minus T1, which is common difference. That is 1 minus 1 minus 1. This came 2. So D came 2. Common difference now 2. What do you have to find? T5. T5 is A plus 4D. 5 minus 1. K we have minus 1. And D we have 4 into 2, and this is nothing but 7. 7 is the answer. Basic question. This is 10th level.
ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ चीज़ों को आप ध्यान से समझ के लेंगे। कुछ बच्चे जो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं 12th करने के बाद, तो जस्ट रिकैप करने के लिए मैंने एक ये छोटा सम लिया है, ये इस तरह का सम, ठीक है, दिस टाइप ऑफ सम, एंड ये यूज टू आस्क, इस तरह के ही सम पूछते हैं वो बेसिक लेवल, सो दैट कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो भी अटेम्प्ट कर सके इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट तो नो डाउट दे कैन सॉल्व वेरी इजली, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्लियर है डियर? आई बिलीव इट इज वेरी सिंपल। इस तरह के सम में SN दिया हो, TN दिया हो, यू कैन गेट द एनी टर्म। फॉर दिस यू रिक्वायर A and कॉमन डिफरेंस। Now we will have, next problem is the sum of integers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 5 is. Options are these. ठीक है, these are options. Question, all of you understood? Question is the sum of integers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 5. That is very important. Divisible by 2 or 5. So basically what we are looking, sum of integers from 1 to 100, correct, which are divisible by 2 or 5, which means we are looking sum of 2 means which are divisible by 2 plus sum of 5 which are divisible by 5 and minus sum of 10, the LCM of 2 and 5, because 2 and 5 both divide the terms of S10 which are divisible by 10, correct? So 2, 5 and then we subtracted S10. That is our motto, that is our demand of this question. फिर से समझो, 2 और 5 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 2 से डिविजिबल वाले S2 हमने निकाल लेंगे, 5 से निकाल लेंगे आप, और माइनस क्या करेंगे, जो 2 और 5 दोनों के जो कॉमन डिवाइजर हैं, जैसे 10 हो गया, तो 10 के डिविजन वाले S10 वाले वो टर्म हो गए, करेक्ट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट S2 वाले टर्म हम देख ले, 2 से 100 के बीच, दिस इज 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 100, इसका सम देख लिया जाए, ये कितना हो जाएगा, आपको वो फॉर्मूला पता होगा n × n + 1/2 वाला, अभी फॉर्मूला याद है तो देख लो, सम ऑफ n टर्म्स n × n + 1/2 होता है 1 + 2 + 3 के लिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 + 2 + 50 हो गया डेल, और ये मैं इस फॉर्मूला से जा सकता हूँ 50 × 51/2, ठीक है, इस तरह से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये समवेयर इट इज 2550 के। सेम वे S5 we will go 5 + 10 + 15 + 100, 5 कॉमन ले लूंगा, 1 + 2 + 20, फिर से सम हो जाएगा 5 × 20 × 21/2, सो दिस इज 210 and 1050, ठीक है। S5 also we have calculated 1050. Now the term is S10. S10 will be 10 + 20 + 100. Again you take 10 common, so 1 + 2 + 10, which is 10 × 11/2. So that is 550. Fine. So now we'll substitute here. S2 we have 2550 plus S5 we have 1050 minus 550. Correct? This is our S. So after subtracting and all, we will get 3050. This is the answer. ठीक है? See, it looks lengthy, but your speed requires. Lengthy तो है, no doubt. ये भी क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं डेयर, तो आप केयरफुली हर एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले सम की जो क्रक्स है, सम की जो आत्मा होती है, क्रक्स क्या है वो पहचानना पड़ेगा आपको।
which is S2 plus S5 minus S10, and then you go for calculation, और जहाँ पे आप गलती ना करें, and you will get the correct answer. This sum, it is there in permutation and combination also. ठीक है, ये sum को permutation combination में भी डाल देते हैं, वहाँ भी methodology यही होगी. Fine. So this sum is important one. थोड़ा अच्छे से समझ के लेना है ऐसे वाला. Divisible by 2 और 5. हो सकता है इसमें 3 नंबर वाले भी आ सकते हैं, तो आपको उस तरह के सम को भी कंट्रोल आना चाहिए. ठीक है डियर. आइए अब हम कुछ एपी के कुछ और टाइप के सम्स देखते हैं. लुक एट दिस. दिस इज वेरी हेक्टिक जॉब डियर. हटता नहीं रहता है इसमें. एंड मैथमेटिक्स क्लास है ना, बोलना तो पड़ता ही है, व्हाइट बोर्ड दिखाना ही पड़ेगा आपको, है ना. चलिए डियर, आइए हम कुछ इस तरह के सम करते हैं. लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ऑप्शन ए पी जी पी एच पी. ठीक है, और नन. फाइंड इट. तो इस तरह के प्रॉब्लम में अंदर में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी में है, अपने को बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन वेट. तो ऐसे प्रॉब्लम के अंदर जो बड़े अच्छे से रन टाइम सोचा जाता है, इसमें बहुत चीज चेंज होती है, तो इसको आप प्रैक्टिस करने पे ही इसमें स्किल आप डेवलप कर पाएंगे. थोड़ा ध्यान से देखो. बेसिकली मुझे इनसे ये तैयार करना है, ये टर्म आने चाहिए. ठीक है, तो मुझे ये टर्म पूरे एक साथ तो नहीं आएंगे, बी प्लस सी ए स्क्वायर से तो नहीं मिलेगा, तो वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग. तो मैं ए स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये ऐड करूंगा ए स्क्वायर. एंड यू नो इन एपी व्हाट हैपेंस, इफ यू ऐड सम कांस्टेंट टर्म टू ईच टर्म, द रिजल्टेंट विल बी आल्सो इन एपी. इफ यू मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट टू द टर्म्स ऑफ एन एपी, the resultant is also in AP, even divide also. ठीक है, तो AP में ये प्रोविजन है हमारे पास, प्रिविलेज है AP के साथ हमारे पास. तो मैंने ये टर्म तीनों में ऐड कर दिया. ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC आई हैव एडेड एंड दिस इज इन AP. सिंस ये टर्म सेम टर्म मैंने ऐड किया है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगी, AP में होगी. अब मैं यहां देखूं कॉमन वगैरह लेके ए प्लस बी सी ए प्लस बी. ठीक है, यहाँ पे बी ले लिया ए प्लस बी, सी ले लिया ए प्लस बी. इधर आ गया डियर, इसमें आप ले लीजिए इसके अंदर सी प्लस बी एंड बी ए, इनमें ले लीजिए आप ए बी प्लस सी. ये क्या है, इन ए पी. ठीक है, पी कॉमन आ गया, ए प्लस बी ए प्लस सी इंटू ए कॉमन ले लिया आपने, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी एंड सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी आर इन ए पी. ठीक है, अब मुझे पूछा गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कहाँ होगा, तो मैं इन तीनों टर्म के अंदर ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी से डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, चलिए. सो इन तीनों में मैंने ए प्लस बी सी और ए प्लस सी से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या बच जाएगा डियर, बी प्लस सी बच जाएगा. इसमें ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से तीनों को डिवाइड किया, तो यहाँ बी प्लस सी रह जाएगा डियर. यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए प्लस सी, एंड लास्ट में क्या रह जाएगा डियर, ए प्लस बी. ये भी कहाँ हो गया, ए पी में, क्योंकि मैंने ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से ईच टर्म को डिवाइड किया. दैट रिजल्टेंट इज अगेन इन एपी. अब ये एपी में है, तो बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किधर चली जाएगी, आर इन एच पी. एच पी में हो जाएगा. ठीक है ना, 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस इन एपी, तो इसका रेसिप्रोकल एच पी में आ जाएगा. सो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एच पी. करेक्ट. तो ऐसे भी सम एपीजीपी में थोड़े हैं जो आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे.
क्या टर्म ऐड करें, क्या टर्म सब्ट्रैक्ट करें, फाइन। सो ऐसे सम पे थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा आपको। अंडरस्टूड। हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में ये टर्म तीनों में ऐड किया, देन आई टुक कॉमन, वी गेट दिस टर्म एंड देन वी डिवाइडेड विथ a plus b into b plus c into a plus c to each three term. So this came in 1 upon which is in AP. So their reciprocal, it is in HP. Fine here. Look at this. One more situation in this type. एक और सिचुएशन देखते हैं हम इस तरह के प्रॉब्लम में। सी इफ b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी, देन ए बी सी आर इन AP, GP, HP या none of these, ठीक है, none of these. So ये AP में दी हुई है तो ABC की तरह है, फाइन। सो इस टर्म में देखते हैं, अगर मैं B प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस 2 ऐड करूं हर एक टर्म के साथ, C प्लस ए माइनस बी अपॉन बी प्लस 2 एंड हियर इट इज A प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2. तो रिजल्टेंट कहाँ होगा डियर? AP में. I am adding constant term, so resultant is also in AP. While adding this, the purpose is what? To get A plus B plus C in numerator. So when you add, take LCM, you will get A plus B plus C. So numerator becomes, this becomes same, ठीक है, this is in AP. Now we'll divide by A plus B plus C to each term. So 1 by A, 1 by B, 1 by C are in where? AP. हमने फिर एक A plus B plus C एक कांस्टेंट टर्म लिया जिससे डिवाइड किया तीनों को, तो रिजल्टेंट भी AP में ही होगा. So 1 by A, 1 by C are in AP. Therefore A, B, C are in HP. Fine. So the answer is HP. ठीक है? Which means आपको सोचना होगा कि हमें किस कांस्टेंट को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, सो दैट आई कैन गेट ABC. तो ऐसे सम को थोड़ा अपने प्रैक्टिस की जरूरत है. ऐसे कई सम्स होते हैं AP-GP में. अभी तो ये AP केवल दिख रहा है, GP-AP मिक्स्ड प्रॉब्लम होंगे, दैट दोज सम्स आल्सो वी विल सी. ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़े से एंटर करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम्स के साथ. Look at this. See, in geometric progression, we came to know the Tn, Sn, and S infinity. Fine. Now look at this first question. If x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, then the fourth term is, options are these are options. ठीक है, so all of you understood, this is in GP, then fourth term अपनी को चाहिए इसका, correct, and options are given. So there we know when this is in GP, what happens? B square equals to AC. Fine. This we know. ABC in GP. So B square equals to AC. That I told you, it's a face of a GP. So B square equals to AC. Now we will simplify this. After simplification, this somewhere this came x square plus 5x plus 4. So we will have root -1 and -4. ठीक है, x की वैल्यू -1 -4 आ गई.
अगर मैं -1 डालूं तो ये 0 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू -1 इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, x इक्वल्स टू -4 डालता हूं तो क्या आएगा, -4. दिस इज गोइंग टू बी -6 -8 + 2 and this is -12 + 3. It is going to be -12 + 3 is -9. तो ये GP आ गया, -4 -6 -9. सो इसका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा डियर, A is -4, R कितना है 6/4, दैट इज 3/2 and 4 में 3 - 1. This is fourth term, A into R to the power n-1. A is -4 and this is 9/, this is 4 na, 4 - 1, that is 27/8, which is -13.5. So this is going to be the fourth term of this GP. And here, see, look at the quality of sum. इस तरह के सम ही एनडीए पूछती है. इसमें कई बच्चे कंफ्यूज है कि एक्स दिया हुआ है, ऑप्शंस में नंबर दिए हुए हैं. So that is what a beauty of NDA. They ask such basic, and it is simple also, and for some student it becomes very difficult. So ऐसे सम पे ही NDA वर्कआउट करती है. तो आपको ऐसे सम आने चाहिए. ठीक है, क्या क्या हुआ डियर, b² = AC. We calculate x, then we check whether -1 -4 both applicable. No, -1 is not applicable. -4 is applicable only. So we got the term for second, third. So we will get the fourth term because A we have and common ratio we have. Find here. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जीपी में. If A, B, C are in GP, then इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन है A + B + C n A³ B³ C³ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. A + B + C, AQ + BQ + CQ, हाँ, A² + B² + C², ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चाहिए. तो ये हमारा क्या है, ABC GP में है, तो B² = AC. ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी विल कैलकुलेट. करेक्ट. नाउ लुक एट दिस पार्ट. A² B² से आप अंदर चले जाओ तो क्या रह जाएगा डियर, B² C² अपॉन A. यहाँ रह जाएगा डियर A² C² अपॉन B, एंड दिस इज A² B² अपॉन C. इसको इंटू कर दिया हमने. करेक्ट. B² C² अपॉन A² C² अपॉन. अब यहाँ बड़े स्मार्टली आपको हैंडल करना पड़ेगा डियर कि अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करें. यहाँ पे B² AC है, B² AC, ये क्या लिख सकते हैं, AC³/A लिख सकते हैं. B² के लिए AC एंड C² सो AC³/B प्लस A² C²/B. तो मैं क्या करूंगा, अगर A² C² करूं तो ये क्या हो जाएगा, B4 एंड दिस इज B. एंड फाइनली A² B², तो मैं वहां क्या कर लूंगा, B² की जगह ये AC डाल दिया. तो ये कितना क्या हो जाएगा डियर, AQ एंड C अपॉन C. So what left, CQ, BQ, AQ. Second option is the correct one. See, बहुत डिफिकल्ट नहीं है.